नमस्कार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x द फॉलोइंग इक्वेशन log of 6x square plus 23x plus 21 whole to the base 2x plus 3 is equal to 4 minus log of 4x square plus 12x plus 9 whole to the base 3x plus 7। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं एंड देन प्रोसीड करना चाहते हैं। लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में ये जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, ये कुछ नहीं है, दिस इनटू दिस है। That is, this equation, this term can be written as log of 2x plus 3 into 3x plus 7 whole to the base 2x plus 3 और is equal to 4 minus log of, ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ नहीं है बल्कि इसका स्क्वायर है। That is 2x plus 3 whole square to the base 3x plus 7। आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 12x and b स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 9 and here c 2x into 3x 6x square and 2x into 7 that is 14x and 3 into 3x 9x, so 14 or 9 23x and 3 into 7 that is 21। एक्चुअल में यही लिखा हुआ। तो हम सबसे पहले इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेस है इसको 2x plus 3 should be greater than 0 होना चाहिए according to definition of log, and the second one condition apply होगा कि 2x plus 3 should not be equal to 1 होना चाहिए, ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। So see here 2x should be greater than -3, so x greater than -3 by 2, and from here 2x is equal to 1 minus 3 that is -2, so x not equal to -1। ये दो कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, whenever x is greater than -3 by 2, in that case this is positive, and this one is what? So we can say here, see observe 3x plus 7 हम चाहते हैं तो x should be greater than -3 by 2, so 3x should be greater than -9 by 2 and plus 7, so 3x plus 7 should be greater than -9 by 2 plus 7, so which is greater than 0। so ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिंग टू हियर ऑब्जर्व दैट कि फर्स्ट टर्म से ही हमें x का ये कंडीशन मिल चुका है, तो ये जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ एक कंडीशन अगेन अप्लाई हो सकता है कि
3x plus 7 should be greater than 0 and 3x plus 7 should not be equal to 1. That is, here x greater than minus 7 by 3 and 3x should not be equal to minus 6, so x should not be equal to minus 2. ध्यान दीजिएगा। तो अंडर दिस केस ये -1.5 है, जबकि ये -1.5 से क्या है, ये -1.5 है ये -1.5 से बड़ा है, ठीक है। और ये कंडीशन होल्ड अंडर दीज 4 कंडीशंस, this one and this one, we can write this expression as this. Under all these 4 conditions, we can write the given equation as this: log of 2x plus 3 to the base 2x plus 3 plus log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3 is equal to 4 minus, ये जो 2 एक log का प्रॉपर्टी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 times log of 2x plus 3 whole to the base 3x plus 7। यहाँ पर हमने log का 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। पहला प्रॉपर्टी था as log of a into b to the base k can be written as log of a to the base k plus log of b to the base k। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे यूज किया है उसके लिए वो है log of a to the power n to the base k is equal to n times log of a to the base k। ये हमने 2 प्रॉपर्टी log का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। नाउ कमिंग टू द राइट पोर्शन ऑफ दिस बोर्ड, अब आप अगेन वन मोर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। log of a to the base a is equal to 1 and second one is log of m to the base n can be written as 1 by log of n to the base m. Using this first property, value of this becomes 1, and if I take this one is y, then this expression becomes 1 by y. So using these two properties, we can write 1 plus y is equal to 4 minus 2 into 1 by y, where y is equal to log of 2x plus 3 3x plus 7
3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, जहाँ पे y हमारा वो वैल्यू है। नाउ मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। ध्यान दीजिए, इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 माइनस 1 3 होगा, तो हियर इज y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई वाई। y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर y स्क्वायर होगा, यहाँ 3y होगा और यहाँ माइनस 2 होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा। सबको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन मिला। नाउ इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं डायरेक्टली y माइनस 1 एंड y माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 0, बिकॉज जब कभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर और y इंटू माइनस 2 वाई एंड माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, बेसिकली वो सेम लिखा हुआ है। यहाँ से y का जो वैल्यू आया वो आया आइदर y इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y का वैल्यू एक्चुअल में देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, 2। यहाँ y का हमें दो वैल्यू मिला, 1 एंड 2। नाउ कमिंग टू हियर, as y is nothing but this much, so we can write log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3 is equal to 1, 2. Again, by definition of log, we can write 3x plus 7 is equal to 2x plus 3 का पावर 1, 2x प्लस 3 का पावर 2। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इससे x का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ when this is equal to this one, so 3x plus 7 is equal to 2x plus 3, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3x माइनस 2x दैट इज x एंड 3, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4, सो x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो x का वैल्यू माइनस 4 आया, इस कंडीशन ये जो x शुड बी ग्रेटर देन -3/2, यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन -1.5, जो कि ये -1.5 से छोटा है। सो ये जो सॉल्यूशन हमें आया ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, not acceptable as x should be greater than -3/2. Now taking the second one expression, that is this one and this one. In this case, writing this term first, so 2x when 2x plus 3 whole square is equal to 3x plus 7. Under this case, स्क्वायरिंग या इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। आप इसको इधर 3x को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 4x स्क्वायर एंड 12x माइनस 3x दैट इज 9x एंड 9 माइनस 7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 9 माइनस 7 दैट इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फर्दर हमारे पास आइदर क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।
फैक्टराइजेशन के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टर्म को, इसलिए हम यहाँ पे इसको टर्म का एडजस्टमेंट करते हैं और लिखते हैं 4x² प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, यहाँ पे 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x इंटू हियर x प्लस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये और ये कॉमन ले सकते हैं एज ए फैक्टर, सो x प्लस 2 इंटू दूसरा हमारा फैक्टर होगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, which gives either x plus 2 is equal to 0, which gives x is equal to minus 2. Again, this value is less than minus 3 by 2, minus which is less than minus 3 by 2. So ये जो वैल्यू आया x का, ये भी acceptable नहीं है, not acceptable, acceptable, नॉट एक्सेप्टेबल। और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये जो हमारा वैल्यू फाइनली आया, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा क्योंकि ये नंबर ऑल दीज 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज the answer of this question. धन्यवाद।